Hello audience, Happy New Year. So we are having the first podcast of 2026. So last year we have disclosed what scams happened in previous year. So this year also we will expose last year's scams and also we will give our prediction of 2026 year scams. So welcome Mr. Anon for our latest 2026 first podcast. So, Mr. Anand, would you give us suggestions and what scams happened in 2025? Will you please give your insights? Hello Tejas, hello audience. First of all, very happy 2026. May this year be very good for you all and may the cyber scams finally stop this year. I know I'm predicting and wishing too much, but I sincerely wish it happens. Now, these cyber scams, as Tejas has rightly said, has been for some time. साइबर स्कैम्स तो बहुत पहले से हो रहा है पर ये इंडस्ट्रियल स्केल में जो साइबर स्कैम्स है वो 2020 के बाद शुरू हुआ था कोविड में। ये कहानी मैं भी बोल चुका हूँ अपने पुराने पॉडकास्ट में, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी बोल चुके हैं और बहुतों को पता है साइबर स्कैम्स कहाँ से हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया से हो रहा है, कंबोडिया से, म्यांमार से, लाओस से, और ये उनका पूरा प्रोसेस भी बहुत लोगों को पता है। सो लेट्स नॉट रिपीट ऑल दैट। अब देखने वाली बात ये है 2025 में भी स्कैम्स हुए, बहुत हुए, कुछ बहुत हाई टिकट स्कैम्स हुए। अभी खबर में आई कि किसी रिटायर्ड यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल ने 15 करोड़ रुपए खो दिए डिजिटल अरेस्ट में। तो स्कैम्स अभी भी हो रहे। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज all the scams in 2025 have been variations of the old scam. यानी कोई नई modus operandi नहीं आई. There was no new modus operandi that people were unaware of. 2020 और 2026 में यही अंतर है कि लोगों के पास अवेयरनेस है. The government has raised awareness, even though it hasn't successfully stopped the cyber scams by arresting everyone involved, but it has raised awareness. Influencers have raised awareness. People like Tejas over here, people like Ketan Indori, Ajay Talks. I would request you to subscribe this channel, Ajay Talks. He has exposed each and every scam that is happening. अगर मेरी बस चलती तो मैं उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डिक्लेयर करता। उन्होंने जो किया है रिगार्डिंग साइबर स्कैम अवेयरनेस और किसी ने नहीं किया। अब लोग बोलते हैं क्या ये ऐप ठीक है, ये एक नया ऐप आया है। अब नाम से क्यों जाते हो, ये पुराना स्कैम ही है जो नए नाम से आ रहा है। एंड उन्होंने जनरल बातें बताई हाउ टू रिकॉग्नाइज समथिंग इज अ स्कैम और नॉट। सो नाउ इन 2026 देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस and all the scams that have been affecting masses, be it the digital arrest scams, be it the fake work from home scams, that is the part-time job scams, or gambling games, or anything like that, like the fake share trading sites where people are losing money in masses. सारे पुराने स्कैम्स के वेरिएशन ही है, बहुत नया कुछ नहीं है। नाम बदल दिया जाता है पर बात वही रहती है। अब जैसे देख लीजिए एक स्कैम हुआ करता था जो 2014 में आया था जिसे बाइनरी ऑप्शंस बोलते थे। वो स्कैम इजराइल से चलता था और करीब $10 बिलियन लोगों ने गंवाए थे पूरी दुनिया में। अब इजराइल में वो बंद हो गया पर वही चीज दूसरी जगह में दूसरे नाम से चलता है। इट्स कॉल्ड BTC contract trading or something like that, gold trading, BTC contract trading. What you have to do over here is predict whether the price of a commodity, a stock exchange pair, or a share price will go up or down in the next 1 minute or 5 minutes. Now, what's the scam?
The thing is, you cannot correctly predict whether the price of something is going to go up or down within the next 1 minute or 5 minutes. In such a short time frame, there are so many micro variations that it's impossible to predict. Predicting it is as good as predicting the toss of a coin, the chance of it is 50%. और इसमें अगर आपने सही प्रिडिक्शन किया तो आपको मिलेंगे 70%, गलत किया तो आप पूरे पैसे गवा बैठेंगे। इसका ये मतलब है that you need to predict correctly 67% of the time. That is, be more luckier than a coin toss, and that's impossible. So this was the scam. Ultimately, this isn't trading, it's gambling, and in gambling, people lose money. The house wins. ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नए स्कैम्स आएंगे नहीं, नए स्कैम्स भी हो रहे, पर जो भी है, जो मास लेवल का स्कैम था, ये वही पुराने नामों से चल रहा है। अब स्कैमर्स नई नई चीजें लेके तो आएंगे, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू कैच ऑन विद द मासेस। सारे लोग सभी चीजों में नहीं खाते, कुछ लोग खाते रहेंगे, बट जो मास में लोग चीट हो रहे थे, आई फील दैट इज कमिंग टू एन एंड नाउ। एक हाल ही में मैंने केस देखा था, इट वाज अ वेरी फनी केस। One person got cheated in a scam. The scam was this: a lady wanted to get pregnant. Her husband wasn't successful in doing that. She was looking for a man to make her pregnant, and on making her pregnant, the man would get 15 lakh rupees or something like that. So one person applied. उसे ये बोला गया कि इसके लिए आपको अपने आप को वेरिफिकेशन करना होगा, और उस वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, विच इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज उसने दे दिए, किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। फिर उसे बोला गया कि हमें कुछ और टैक्सेस की जरूरत होगी, तो आप कुछ और पैसे दे दीजिए। उसने शायद 10,000 15,000 रुपए और भी ट्रांसफर कर दिया। फिर उसे बोला गया कि कुछ मेडिकल कॉस्ट आएंगे इस प्रोसेस में, कुछ और पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। जब आपको पैसा मिल जाएगा, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो 15 लाख के साथ सब कुछ वापस मिल जाएगा। उसने और पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो बात यह है कि वो पैसा ट्रांसफर करता जाए किसी ना किसी बहाने से, एंड ही लॉस्ट इन लैक्स। कितना लैक्स आई डोंट रिमेम्बर, बट इसके लेने के देने पर गए, शायद 10 लाख करीब उसके पैसे गए। नाउ टू बी अ विक्टिम ऑफ दिस स्कैम, यू हैव टू बी हॉर्नी, यानी कि ठरकी, यू हैव टू बी स्टूपिड, एंड यू हैव टू बी ग्रीडी ऑल एट द सेम टाइम। अब ये कॉम्बिनेशन रेयर है। मीन्स यू आर पीपल आर इन दिस स्टूपिड और दिस हॉर्नी। उसे क्या लगा कि पैसे भी मिलेंगे, अय्याशी का मौका भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लॉटरी लग गई। नहीं, सारे लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते। सो ऐसे नए स्कैम्स आएंगे और एक साथ विक्टिम बनने के चांसेस कम ही है। और ऐसे दूसरे स्कैम्स भी है, जैसे कि आपने एक नंबर कॉल किया, या फिर आपने कोई मैसेज आया, आपने एक फाइल खोल दी, उसके बाद आपके अकाउंट्स के डिटेल आपने आपको सिस्टम को पता चल गया, आपका पैसा खाली हो गया। Even that has been happening, but उसके लिए there is definitely some loophole in that user security. This cannot happen in mass. So most of the scams that are happening because of the implicit consent of the victims. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, the victims lose money because of two reasons, either greed or fear, यानी कि लालच या डर। यही इमोशन है जिनका लाभ स्कैमर्स उठाते हैं, और इसी से लोग पैसे गवाते हैं। तो एज आई सेड, पैसे अगर आपको स्कैमर्स को नहीं देने, इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड, कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है, फोकट का पैसा आता नहीं है। जो ये लोग कहते हैं पार्ट टाइम जॉब में या शेयर ट्रेडिंग में इतना ज्यादा पैसा एक साथ मिल जाएगा, अगर ये सच में होता, if that something like that was possible, wouldn't
द एंटायर वर्ल्ड हैव बिकम रिच बाय लॉ, क्योंकि ये मेथड लोगों को पता चल जाता कहीं और एंड वो लोग करते और पैसे बना देते। पैसे आफ्टर ऑल कहीं से तो आना है। सो एनीथिंग दैट प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट टाइम इज अ स्कैम। इट्स नॉट, ये नहीं कहो कि बहुत ज्यादा पैसा बनता नहीं है, बनता है, बट फॉर दैट यू आइदर नीड स्पेशलाइज नॉलेज और लक। जैसे आप कैसीनो गए, विच इज अ लेजिट थिंग बाय द वे, गोवा में कैसीनो है, गए एंड इफ योर लक इज रियली गुड यू कैन विन अ लॉट ऑफ मनी, बट यू नीड टू बी वेरी लकी और यू नीड टू हैव स्पेशलाइज नॉलेज। जैसे आपने कुछ चीज इन्वेंट की एंड when that invention fetch you a lot of money, or you need to work very hard. If you not or your equipment, ये क्रिप्टो करेंसी वाले यही कर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत ज्यादा इक्विपमेंट लगा के रखा है विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेट्स बिटकॉइंस। अगर आप ये कर सकते हो मे बी यू कैन ऑल्सो गेट मनी, बट समथिंग यू नो दैट वेर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड अ लॉट ऑफ मनी विल कीप इन, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात हमेशा याद रखिए। सो इफ यू आर नॉट ग्रीडी एंड इफ यू आर नॉट फेयरफुल, जैसे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये बातें याद रखिए एंड यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द स्कैमर्स। तो ऑडियंस, मेरे पास एक 2025 का डेटा आया है। तो कुल मिलाकर 2025 में 20,000 करोड़ लॉस हुआ है साइबर क्राइम में। तो आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। जो मेरा कहना ये है, मैं आखिरी तो मेरे पास है नहीं, बिकॉज एंड आई डोंट नो किसके पास है, जहां तक मेरा मानना है 1% ऑफ आवर कंट्री इज इन्वॉल्व इन द स्कैमिंग इंडस्ट्री। ये स्कैम्स नहीं होंगे अगर म्यूल अकाउंट्स बनाने वाले नहीं होंगे, अगर बैंकर्स नहीं होंगे जो जानबूझ के म्यूल अकाउंट्स बनाने में मदद करते हैं। ये स्कैम्स नहीं होंगे अगर वो फर्जी इमिग्रेशन वाले नहीं होंगे हु सेंड पीपल टू दी स्कैम प्रोन कंट्रीज लाइक कंबोडिया एंड म्यांमार, एंड जो गलत इंफॉर्मेशन देके, झांसा देके लोगों को भेजते और जबरदस्ती जहां पे उन्हें स्कैमिंग करवाया जाता है। अगर लोग नहीं होंगे जो स्कैमर्स को सिम कार्ड दिलवाते हैं, अगर ये सब नहीं होंगे तो ये स्कैमिंग भी नहीं होगी। धुरंधर फिल्म आई थी, उसमें एक लाइन था कि देश के दुश्मन पाकिस्तान में नहीं भारत में है, असली दुश्मन भारत में है। धुरंधर में तो कुछ दूसरी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, पर इसका असली मीनिंग यही है। अगर देश वाले ही अपने ही दुश्मन हो जाए तो देश चलेगा कैसे? 20,000 करोड़ गए हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द परपेट्रेटर्स वर सिटिंग अब्रॉड, पर मदद किसने की है? इंडिया ने की है, इंडियंस ने की है, इंडिया में बैठे लोगों ने की है। और जो अथॉरिटीज, चाहे सीबीआई हो या साइबर सेल वाले हो, जो भी, उन्हें अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है, जो देखे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट मच एक्शन हैज बीन टेकन। गलती उनकी भी। मैं यही बोलूंगा कि ईमानदारी से काम करो, इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। अब बचने वाले बच जाते हैं और फंसने वाले फंस भी जाते हैं, और बहुत गलत तरीके से भी। हाल ही में ऐसा हुआ था कि एक म्यूल अकाउंट द्वारा पैसे किसी के पास आया था। क्यों आया था? बिकॉज दैट किसी ने एक पार्ट टाइम जॉब की थी और पार्ट टाइम जॉब करके उसने 150 रुपए ले लिया था। तो जो और पुलिस वाले इस बंदे को भी एक मनी म्यूल समझ लिया। अब इन्होंने क्या किया, वही पैसे किसी दुकान में देके उन्होंने शॉपिंग की। उनका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, दुकान वाले का अकाउंट भी फ्रीज हो गया। और एक बार पैसा फ्रीज हो जाए तो इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले आपको उस स्टेट में जाना होगा जहां से कंप्लेंट की गई। यानी अगर आप दिल्ली में बैठे हो सकता है चेन्नई जाना हो, मुंबई जाना हो या गुवाहाटी जाना हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं बाय स्कैमिंग एंड बीइंग एन एजेंट ऑफ द स्कैमर्स?
ईमानदारी से काम करो, पैसे कमाओ, दैट्स मच बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री. दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज टू ऑल द पीपल. वैल्यू दो, सोसाइटी को दो, बिजनेस को दो, डू समथिंग जेन्युइन एंड you will help yourself, you will help your country, you will help your friends. Do that. सो ऑडियंस, हमने लास्ट ईयर जो प्रिडिक्शन किया था वो सही निकला था. मिस्टर अनोन ने कहा था कि कोई एपीके फाइल या लिंक आएगी जिससे मोबाइल हैक होगा और विक्टिम पैसे गवाएंगे. तो हाल ही में इंदौर में 12 पुलिस ऑफिसर के साथ ये स्कैम हुआ था, ट्रैफिक की चालान स्कैम के थे इसे. तो उन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया और उनके मोबाइल के एक्सेस हैकर के पास चले गए और जो थानेदार थे इंदौर में उनके 58,000 रुपीज उड़ा दिए गए. तो आपका क्या प्रिडिक्शन है, 2026 में भी सेम ही स्कैम चलेगा? देखिए, ये जो एपीके फाइल स्कैम, सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई फाइल आए, अननोन नंबर से आए, उन पे क्लिक नहीं करना है. और दूसरी बात ये है जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आई, वो ये है कि आपके बैंक अकाउंट चाहे जितने भी चीजों से कनेक्टेड हो, कुछ इनबिल्ट सिक्योरिटीज रहती है. जस्ट बिकॉज यू डाउनलोडेड अ फाइल इन योर मोबाइल फोन, इसका ये मतलब नहीं कि परमिशन मिल जाए टू डिडक्ट मनी फ्रॉम दैट अकाउंट. तो ये उनके अकाउंट में ये सेफगार्ड नहीं था और ये ज्यादातर लोगों के अकाउंट में होता है. तो ये स्कैम जहां पे एपीके डाउनलोड होने से पैसे चले जाए स्कैमर के पास, ऐसी बात नहीं कि होगा नहीं, बट एज आई सेड, इट्स नॉट गोइंग टू गेट कॉट इन मास. जैसे कोविड वायरस देखिए, वो भी वायरस था, स्कैमिंग भी एक वायरस से. या तो कुछ वायरस होते हैं जो बहुत लोगों को इन्फेक्ट करता है, कोई द पार्ट टाइम जॉब scams, the share trading scam was like that. There are other viruses that are very limited, जो कुछ ही लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है क्योंकि वो स्प्रेड कर ही नहीं सकता without some very special mechanism. And these things like these APK files and all are like that. कि ये स्कैम्स होंगे, बट और भी टेक्निक्स आएंगे, बट इतने लोगों को एक साथ विक्टिम बनाना शायद संभव नहीं होगा. और स्कैम वेरिएशन आएंगे क्या इसमें, एपीके फाइल में भी? आ सकते हैं, बिकॉज स्कैमर्स आर ऑलवेज ट्राइंग न्यूअर मेथड्स. जैसे 2024 में गिफ्ट बॉक्स स्कैम आया था, जो कि पुराने स्कैम का ही वेरिएशन था कि पैसे दो, आपको कुछ खरीदने के लिए झांसा दिया गया एंड यू वर प्रॉमिस्ड हायर रिटर्न्स. अल्टीमेटली दैट गिफ्ट बॉक्स स्कैम वाज द सेम थिंग. कम एक चीज है जो कम चीजों में खरीदो और ज्यादा चीज में बेचो. नाउ द स्कैम वाज कि कोई क्यों तुम्हें ज्यादा दाम देगा फॉर समथिंग दैट यू हैव ब्रॉट एट अ स्मॉलर अमाउंट, वो भी ऑनलाइन. Why will anyone do that? अगर कम में ही ज्यादा में ही खरीदना है तो why, और तुम कम में खरीद रहे हो, ये बात सोचने की वाली बात है कि why is the price variation there? Why will someone not buy something at a lesser price directly from the source? Why will he buy it at a higher price from you? तो this was the scam. अब वेरिएशंस तो आएंगे, बट अल्टीमेटली अगर आप पुराने स्कैम समझते हैं और जानते कि वो पुराने स्कैम्स कैसे काम करते हैं, अगर आप जानते पॉन्जी स्कीम क्या होती है, और जो बहुत सारे लोग जानते हैं आजकल, मैंने पहले भी समझाया है, आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू द डिटेल्स अगेन. ये वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जो जहां पे पैसे पहले तो दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो आगे के लोगों ने डिपॉजिट किया है उनका पैसा आपको दिया जाता है. ये जितने पावर बैंक स्कैम्स हो रहे हैं या इवन दिस वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स आर एक्चुअली पॉन्जी स्कैम्स, जहाँ पे आपको पहले पैसा इसलिए दिया क्योंकि किसी और ने डिपॉजिट किया. इट्स नॉट बिकॉज यू योर इन्वेस्टमेंट यू फेच द रिटर्न और यू
did something very economically productive. That's the reason you are getting money. And ultimately all these scams are Ponzi scams. अगर ये Ponzi mechanism आप समझ गए तो आप scam समझ गए. Variations आएंगे and but you need to be aware. एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, आपने पैसा खोना शुरू किया, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है. जैसे गया को एसीपी प्रद्युमन बताते हैं सीआईडी में, वैसे ही आपके दिमाग को भी अपने आप ही पता चल जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग. कुछ लोगों के लिए वो अमाउंट 1,000 होता है, कुछ के लिए 10,000 होता है, कुछ के लिए हो सकता है 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, बट 1 करोड़ गंवाना, 1 करोड़ अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में देना मुझे भी समझ में नहीं आया. मे बी साइकोलॉजिस्ट कैन स्टडी दिस, or if any one of you is a psychologist, I really request you to work on this. When you are getting scammed, when you are exposed to the emotions of fear and greed, दिमाग की कौन सी रीजन, ब्रेन की कौन से रीजन एक्टिवेट होते that prevents you from thinking normally. It's an interesting psychological study. But even if you are not a psychologist, you should know yourself, you should know fear and greed and control these emotions and you will be safe from the scammers. तो आगे अभी आपने कहा कि फेयर और जो ग्रीड होता है उसके रिलेटेड ही ये स्कैम डिजाइन होते हैं. Well, in almost all cases, yes. एक और इमोशन है गिल्ट. यानी कि कोई फर्जी एनजीओ चला रहा है जो बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो जिसकी सर्जरी होनी है, आप प्लीज डोनेट कर लीजिए. वो भी हुआ इंडिया में, कुछ फर्जी एनिमल राइट्स एनजीओ भी आए और आ गए, बट देन उसकी संख्या बहुत कम है. अमंग ऑल द स्कैम्स हैपनिंग, इनकी संख्या बहुत कम है. एज आई नो, देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया, मेनी children, many old age people, many people with medical emergencies, animals that actually need help. So ये फर्जी एनजीओ स्कैम बहुत ही कम है among all the scams that are happening. So that's a third emotion, but that can be discounted at this moment. ओके. तो यहाँ पर अभी टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो कॉलर आईडी होते हैं उस पे भी अभी बहुत सारा काम किया है. जो नाम से सिम रजिस्टर होता है वही नाम अभी कॉलर आईडी पे देखने लग गया है. तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, बात ये है, ये सब तब ठीक है जब असली नंबर से लोग कॉल करें. People call with spoofed numbers or using WhatsApp or Telegram. अब WhatsApp में क्या खास बात ये है, आप के सिस्टम में किसी और मोबाइल का सिम भी लग सकता है. यानी मैं अगर अपना सिम कार्ड कंबोडिया में दे दूं तो मेरे नंबर से का WhatsApp से आपको कॉल किया जा सकता है. एंड even though my name will be shown as Mr. Anand or whatever my actual name is, but then call करने वाला तो कोई और होगा. So that's not enough. ये जो काम किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला, it is not enough because of the way these scammers operate. और असल ये किस चीज से सब कुछ ठीक होगा, आई कांट से. जैसे व्हाट्सएप वालों ने ही किया, मेटा विच ओन्स व्हाट्सएप हैज अडॉप्टेड अ न्यू फ्रेमवर्क कि अगर आपका ये व्हाट्सएप वेब आपने खोल के रखा है 3 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, अनलेस इट्स वेरीफाइड बाय द ओरिजिनल यूजर ऑफ द नंबर. जो पहले क्या होता था, वो व्हाट्सएप वेब चलता रहता था तो चलता ही रहता था, बट अब जो सुनने में आया है कि 3 घंटे में अपने आप लॉग ऑफ हो जाता है. एंड सिंस मोस्ट ऑफ द स्कैमर्स ऑपरेट यूजिंग व्हाट्सएप वेब, सो अनलेस द ओरिजिनल नंबर ओनर
verifies it, it automatically gets logged off, and the person who is pretending to use your number gets disconnected from it. तो ये सब मैकेनिज्म्स है, पॉलिसीज है, जिससे साइबर सिक्योरिटी ज्यादा हो सकती है, बट सिर्फ नंबर शेयर करना दैट मीन्स नथिंग इन इटसेल्फ. तो ऑडियंस, तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू. तो आपको स्पेशली 2026 में बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम से और भी फिशिंग स्कैम से. तो मेरे पास अभी डेटा है स्टेट वाइज साइबर फ्रॉड लॉसेस इन 2025. तो टॉप 5 स्टेट्स में फर्स्ट स्टेट आता है महाराष्ट्र, सेकंड स्टेट आता है कर्नाटका, थर्ड आता है तमिलनाडु, फोर्थ आता है उत्तर प्रदेश और फिफ्थ है तेलंगाना. तो ये जो 5 स्टेट्स है वो हाफ ऑफ द इंडिया के साइबर फ्रॉड यहाँ पर हुए हैं 5 स्टेट्स में. तो ये 5 स्टेट्स के अलावा भी और भी स्टेट्स में हुए स्कैम, पर ये 5 स्टेट्स हाफ ऑफ द इंडिया के साइबर फ्रॉड यहाँ पे हो रहे हैं. तो आपको ये स्टेट्स में आप अगर आप रहते तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की क्या बोलते प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको बच के रहना चाहिए. अब एक चीज बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये 5 स्टेट जिसके आप नाम लिए, इंडिया की अधिकतर जीडीपी इन्हीं स्टेट्स की वजह से है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, बिकॉज इट्स अ लार्ज स्टेट बाय पॉपुलेशन. यस. तो जाहिर सी बात है, जहां पे जीडीपी ज्यादा, जहां पे पैसे ज्यादा, प्रोपोर्शन ऑफ फ्रॉड वहीं पे ज्यादा. इट्स नॉट दैट कि इन स्टेट्स को स्पेशली अलग से टारगेट किया जा रहा है, पर वही बात है, पैसे ज्यादा यहाँ पे है तो पैसे गवाए भी यहीं से जाएंगे. बचना आपको सभी जगह में है, चाहे आप आसाम में हो या तमिलनाडु में हो या कश्मीर में हो. इनफैक्ट ये स्कैम जो है, ऑर्डर ग्रैबिंग जिसे बोलते थे, द पार्ट टाइम जॉब स्कैम, द प्रीपेड टास्क स्कैम, सबसे पहले विक्टिम्स कश्मीर से थे इसके. 2021 जनवरी की बात है. द website or app was called Shoppers, and that was the first prepaid task scam that was inflicted on India. अब उसके बाद बहुत सारे हुए, ऑर्डर ग्रैबिंग के भी बहुत सारे वेबसाइट्स आए अलग अलग नाम से, अमेजन जॉब, ये टास्क, फलाना टास्क, फ्लिपकार्ट टास्क, स्नैपडील टास्क, मीशो टास्क. फिर वेरिएशन आया, होटल रेटिंग, ट्रैवल रेटिंग, मूवी रेटिंग. फिर अलग एक और वेरिएशन आया कि यूट्यूब लाइक. पर बात वही है, दे आर ऑल प्रीपेड टास्क स्कैम्स, जहाँ पे एक टाइम के बाद इफ यू डोंट चार्ज you won't be allowed to do the next task, and that's what the scam is. तो इसके विक्टिम बहुत सारे लोग रह चुके हैं, एंड बट देन द वेरिएशन इज द सेम, एंड दिस स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ कश्मीर. सबसे पहले विक्टिम्स उसी वहीं से थे, क्योंकि जो भी हो, होता ये जब भी एक स्कैम शुरू होता है, someone gets exposed to it and the people around him start getting exposed to it. इत्तेफाक की बात है, since the scammers were based in Southeast Asia, उसका कोई रिलेटिव मिला कश्मीर में, who became the first victim, just like a viral disease, and और उसके आसपास के लोग बने victims. So that this was in the state of Kashmir. अब स्कैम कहीं से भी शुरू हो सकता है. डिफरेंट स्कैम्स गेट पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वेस्ट बंगाल इज आल्सो अनदर स्कैम प्रोन स्टेट. तो इसका ये मतलब है कि जहां भी आप हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए. तो हम 2026 के ये पहले पॉडकास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि आपको जो पास्ट स्कैम्स है उस पर फोकस करके आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए. So, Mr. Anon, would you conclude this podcast now? Yeah, definitely. Now the thing is, we have had enough scams by now. We know what the scammers think. We know how they are confident that people will become victims. You can break them by tightening your will.
Make your willpower strong. You will be safe. Your country will be safe. Your society will be safe. Do that. And happy 2026 to all of you. Jai Hind. Jai Hind. Thank you all. See you in Thank you, the next Tejas. podcast. Thank you, Tejas. Take care. Take care.